Hello students, welcome to the Temperature Physics classes. Today we are discussing one more challenging problem on the magnetic field, the space-varying magnetic field. So the problem is like this. We have a current carrying conductor here, and here we have a metallic frame of wire, U-shaped frame of wire, and this conductor, as you know, it creates magnetic field here. And if the current is forward, the magnetic field here in this region is created inwards. That can be found. It's the OR and magnetic field is inwards. Current is this, magnetic field here is inwards. So in this frame, the magnetic field goes inwards, right? And now what we do is that we give velocity to this rod. This rod is of length L. We give it velocity in the forward direction. We have to find how much force is needed to keep the velocity of the rod constant. To sustain the velocity of the rod, to keep the velocity of the rod constant, how much force we need in the forward direction. This is the force which is created due to the magnetic field, due to the current in this part of the conductor, and this is already in the magnetic field, and there's a backward force due to that. But how much forward force we have to create to keep the velocity constant? A current carrying conductor and a wire frame. This current carrying conductor produces magnetic field inwards, and now the rod is moving forward, and this flux changes. Due to this change in flux, there is induced EMF between the ends of the conductor, and that induced EMF will send current here. Different current. This is different current. This will produce a current, suppose small I. When this current flows, it flows through the rod itself, and this rod is now in the magnetic field. This rod is now in the magnetic field, and it carries current, and therefore there is a force. The force is in this direction, because you are trying to move the rod in the forward direction. Force is always opposed to the motion of the rod. When the current is in the upward direction, magnetic field is inwards. Current is in this direction, magnetic field is inwards. I cross this I cross B is this way. The magnetic force is in this direction. So you have to apply forward force. आपको ये फोर्स अप्लाई करना है फॉरवर्ड डायरेक्शन की वजह, इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, टू कीप द वेलोसिटी कांस्टेंट. अदरवाइज क्या होगा, इस फोर्स की वजह से ये रिटार्ड डाउन होगा और ये स्टॉप होगा आगे जाकर के. सो द क्वेश्चन इज हाउ मच फोर्स वी नीड टू अप्लाई ऑन द रॉड टू कीप इट्स वेलोसिटी कांस्टेंट. हाउ मच फोर्स is applied on the rod of length L to keep the velocity constant. Keep the velocity constant. To keep the velocity constant. इस डायरेक्शन में कितना फोर्स हमें अप्लाई करना होगा कि ताकि इस रॉड का वेलोसिटी आगे जाकर के constant रहेगा. In that case, the net force will be zero. Force applied forward, the backward magnetic force, and the net force is zero. तो एक बात जरूर है कि जो आप फोर्स आगे की ओर अप्लाई करोगे वो इस मैग्नेटिक फोर्स के बराबर होना चाहिए. इस मैग्नेटिक फोर्स के बराबर होना चाहिए, राइट? तो बहुत सारी चीजें हैं. एक तो हमें ये देखना है कि हाँ, दिस इज A, लेट मी सपोज, and the length of this rod is L, and magnetic field which passes through this frame is from here to here in this region. Okay, so it involves many concepts. First of all, we must know how much is the magnetic field produced by this rod. That's one concept. Second concept is when this magnetic field is here and passes through this frame, तो उससे कितना फ्लक्स प्रोड्यूस होगा इस रीजन में, ये फ्लक्स निकालना है. और उसके बाद जब ये रॉड आगे जा रहा है तो दैट फ्लक्स विल चेंज. उस फ्लक्स चेंज की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा इस रॉड में, और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से करंट फ्लो होगा, और उस करंट फ्लो होने की वजह से क्या होगा, वो करंट इस रॉड में से फ्लो करता है और
ये रॉड करंट कैरिंग रॉड हो जाएगा इन द मैग्नेटिक फील्ड, उस वजह से इस पर फोर्स होगा रॉड पर, बिकॉज इट इज अ करंट कैरिंग रॉड इन द मैग्नेटिक फील्ड, और वो फोर्स इस तरफ होगा, मैग्नेटिक फोर्स। तो उतना फोर्स हमें आगे देना पड़ेगा टू कीप द वेलोसिटी ऑफ द रॉड कांस्टेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे पता होना चाहिए ये जो रॉड है, ये जो वायर है, करंट कैरिंग वायर, ये इस रीजन में कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। वो मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है नहीं। अगर वो कांस्टेंट होता तो द प्रॉब्लम वुड हैव बीन सिंपलर, बट मैग्नेटिक फील्ड जो इस करंट कैरिंग कंडक्टर का है वो वेरी करता है फ्रॉम हियर टू हियर डाउनवर्ड्स। तो हमें फ्लक्स निकालने में थोड़ा सा देखना पड़ेगा, फ्लक्स हम कैसे निकालेंगे, बिकॉज इट इज नॉट ए कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, सो दैट यू कैन राइट ओके मैग्नेटिक फील्ड इनटू एल इनटू एक्स, Lx is the area and magnetic field you write, and that will give you the flux. But here magnetic field is not constant, it varies from here to here. So flux में भी आपको मतलब उसमें भी आपको कैलकुलस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और फिर इस रॉड पर जो फोर्स है इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फोर्स, वो निकालने में भी आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, बिकॉज फोर्स इज मैग्नेटिक फोर्स इज F इज इक्वल टू I करंट L क्रॉस B, मगर वो तब है जब मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो, तब जाकर वो IL क्रॉस B हो जाता है। यहां मैग्नेटिक फील्ड यहां से यहां, जो इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है यहां से यहां तक, ये रॉड जिस मैग्नेटिक फील्ड में है वो कांस्टेंट नहीं है। तो वहां भी आपको देखना पड़ेगा हाउ टू डील विद दिस काइंड ऑफ ए प्रॉब्लम। सो पहली बात यह है कि मैं ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, मैं देखना चाहूंगा ये कितना फ्लक्स प्रोड्यूस हो जाएगा इस रीजन में। जो ये एनक्लोज्ड फ्लक्स है इस रॉड और ये फ्रेम के में जो फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो अंदर के ओर है फ्लक्स, वो कितना है, दैट वी हैव टू सी। तो पहले ये यहां से यहां मैग्नेटिक फील्ड तो निकालिए, ठीक है। व्हाट आई विल डू, आई विल टेक ए स्ट्रिप्ट हियर, ए लिटिल स्ट्रिप्ट, वो यहां से यहां R की दूरी पर है, और ये थिकनेस ऑफ द स्ट्रिप जो है वो dr है। तो इस स्ट्रिप में कितना फ्लक्स है, इस स्ट्रिप में, इस एरिया स्ट्रिप में कितना फ्लक्स है, अगर ये dr है, ये dr है, या ये दिस पीस दिस dr, तो कितना फ्लक्स है। ओके, अ स्मॉल पार्ट ऑफ फ्लक्स विल बी हियर, d phi इज इक्वल टू हाउ मच, एक तो ये x, ये x, और ये dr, ये हुआ एरिया ऑफ द स्ट्रिप, इस स्ट्रिप का एरिया। सो दैट इज xdr, xdr इज द एरिया। और इस कंडक्टर ने यहां इस स्ट्रिप में कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया है, क्योंकि ये स्ट्रिप जो है, एरिया स्ट्रिप कितना दूर है कंडक्टर से, r, तो वो मैग्नेटिक फील्ड है μ0 I by 2 pi r। That's all. This is the flux through this area strip, but we have to find a flux from here to here in the whole region of this, in the whole region of this frame। यहां जो रॉड्स के लेफ्ट साइड में फ्लक्स है, तो कितना होगा ये फ्लक्स, उसके लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी गेट। तो d phi को इंटीग्रेट करने से क्या होगा, वो होगा x dr μ0 I by 2 pi r। तो इंटीग्रेट करो कहां से कहां तक, यहां से यहां तक। ये पॉइंट है a कंडक्टर से दूर, और ये पॉइंट कितना दूर है, ये लाइन है दूर a, और ये लाइन कितना दूर है, a प्लस l, क्योंकि ये l है। तो इंटीग्रेशन लिमिट्स होंगे a to a प्लस l। ये फ्लक्स इज इक्वल टू, हाँ ठीक है। तो जो कांस्टेंट क्वांटिटीज है वो बाहर निकालिए, x इज अ कांस्टेंट हियर फ्रॉम हियर टू हियर, अभी इस रीजन में जो फ्लक्स है, x बाहर निकालिए, μ0 बाहर, I बाहर, 2 पाई बाहर, तो अंदर रहेगा dr बाय r, a प्लस l dr बाय r। तो फ्लक्स जो है, जो मुझे फ्लक्स मिला, दैट इज μ0 I बाई 2 पाई x ऊपर ये वाला डिस्टेंस, रॉड को अगर मैं मूव करूंगा तो ये x चेंज होगा, तो dx बाई dt इज दिस वेलोसिटी, किस रेट पर ये x चेंज होगा वो वेलोसिटी कहलाएगा।
तो इट इज ln ऑफ r अंडर लिमिट्स a टू a प्लस l, राइट। तो फ्लक्स इज इक्वल टू जो मुझे मिल रहा है फ्लक्स, जो मुझे फ्लक्स मिल रहा है, जो मुझे फ्लक्स मिल रहा है फाई, दैट इज म्यू 0 I डिवाइड बाई 2 पाई x ln ऑफ, अब r को ये वैल्यू दीजिए, फिर ये दीजिए, दैट इज a प्लस l माइनस ऑफ ln ऑफ a। यहां अगर मैं ऐसे करूं तो ln ऑफ a प्लस l माइनस करके ln ऑफ a, तो फ्लक्स इज इक्वल टू म्यू 0 I x डिवाइड बाई 2 पाई ln ऑफ a प्लस l बाय a। यहां पर ये मुझे फ्लक्स मिला। सो इन इटसेल्फ इट वाज आल्सो ए गुड थिंग टू डिटरमाइन कि कितना फ्लक्स होगा इस रीजन में। हाँ, तो वहां इजी इसलिए हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, एरिया दिया हुआ है, तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया फ्लक्स लिखते हैं। लेकिन यहां इसको निकालना पड़ा क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड यहां से यहां तक है वो वेरी कर रहा है, इसलिए यह स्ट्रिप लेना पड़ा, कैलकुलस का यूज करना पड़ा। सो फिलहाल हमें मिला फ्लक्स। तो अब जाकर के दूसरा जो पॉइंट है, मुझे बताइए व्हाट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन दिस रॉड। इस रॉड में, ये जो रॉड है इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना है, पहले मुझे बताइए विच पॉइंट विल बिकम पॉजिटिव, विच विल बिकम नेगेटिव। देखिए ये जो रॉड है आगे की ओर मूव कर रहा है, आगे यूं, तो अगर वेलोसिटी यूं है तो फ्लक्स तो इंक्रीज होगा। ये फ्लक्स जो इस रीजन में फ्लक्स है, रॉड आगे जाने से फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है। अगर फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है मगर वो इंक्रीज हो रहा है अंदर के ओर, इनवर्ड, ठीक, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी, दिस विल बी पॉजिटिव, दिस विल बी नेगेटिव, सो दैट इट विल सेंड करंट लाइक दिस। तो इस करंट की वजह से इसका अपना मैग्नेटिक फील्ड जो है, इस करंट की वजह से, इसकी करंट की वजह से वो बाहर की ओर होना चाहिए। या एक चीज याद रखिए, जिस डायरेक्शन में भी आप वेलोसिटी देना चाहते हो, जिस डायरेक्शन में भी आप वेलोसिटी देना चाहते हो, मैग्नेटिक फोर्स जो है वो उसके अपोजिट होगा हमेशा। अगर ये रॉड आप यूं मूव करने की कोशिश करते तो मैग्नेटिक फोर्स उल्टा होगा, इस वेलोसिटी के उल्टा होगा। अगर वेलोसिटी यूं है तो मैग्नेटिक फोर्स यूं है, अगर वेलोसिटी यूं करते तो मैग्नेटिक फोर्स यूं हो जाता है। तो इस वजह से ये करंट, जब इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हो जाता है इस रॉड में मोशन की वजह से, because now it changes the magnetic flux in this portion of the frame, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से करंट फ्लो हो रहा है और करंट रॉड के थ्रू जा रहा है ऊपर। तो जब इस करंट रॉड के थ्रू ऊपर जा रहा है तो दैट विल प्रोड्यूस ए फोर्स, बिकॉज नाउ इट्स अ करंट कैरिंग रॉड इन द मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, इसका मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, सो इट इज I क्रॉस B, that is force is this way. Okay, now the question is how much is the induced, this is the flux, how much is the induced EMF? तो उसके लिए इस फ्लक्स को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो differentiate the above equation, क्या मिलेगा, d phi by dt is equal to mu 0 constant, I constant, 2 pi constant, ln of a प्लस l बाय a कांस्टेंट, एवरीथिंग कांस्टेंट। सिर्फ ये एक्सचेंज हो रहा है क्योंकि जब आप रॉड आगे ले रहे हो तो ये एक्सचेंज होगा। तो किस रेट पर एक्सचेंज होगा, dx by dt। मगर you already know the velocity moves forward with velocity v, therefore dx by dt is simply v। रॉड आगे एक्सचेंज, कितना एक्सचेंज होगा पर सेकंड, that would be velocity, so dx by dt is the velocity। मगर this is minus induced EMF E, that is mu 0 I by 2 pi, that is ln of a plus l by a velocity। तो magnitude of induced EMF is mu 0 I by 2 pi ln of a plus l by a v।
ये मुझे मिला इंड्यूस्ड ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन अक्रॉस द एंड्स ऑफ द रॉड। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस करंट भेजेगा इस रेजिस्टेंस के थ्रू। ये पोटेंशियल डिफरेंस मैंने जो निकाला इंड्यूस्ड ईएमएफ, इसकी वजह से इस रेजिस्टर के थ्रू करंट फ्लो होगा। तो बताइए वो करंट किसके बराबर होगा? दैट करंट विल बी इक्वल टू, स्मॉल आई मैं लिखता हूं उसके लिए क्योंकि ये कैपिटल आई तो उस ऊपर वाले कंडक्टर का करंट है। दैट इज म्यू ई मैग्नीट्यूड बाय आर, ये रेजिस्टेंस। सो दैट इज इक्वल टू म्यू 0 आई बाई 2 पाई आर लॉन ऑफ ए प्लस एल बाय ए वी। तो ये मुझे करंट मिला इसमें। अब मैं देखना चाहता हूं इस करंट की वजह से जो इस रॉड के थ्रू फ्लो कर रहा है ऊपर की ओर, कितना मैग्नेटिक फोर्स होगा, कितना, हाउ मच इज द मैग्नेटिक फोर्स, हाउ मच इज द मैग्नेटिक फोर्स इस करंट की वजह से, हाउ मच इज द मैग्नेटिक फोर्स, वो देखना पड़ेगा। फिर से वो एक किस्म का चैलेंज है कि हाउ मच इज द फोर्स। तो फोर्स यू नो हाउ इज द फोर्स, दैट इज F इज इक्वल टू करंट L क्रॉस B। तो यहां ये करंट, ये L और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर जो है, तो वो तो सीधे हो जाएगा ILB, बिकॉज दिस इज I एंड L द सेम एंड दिस इज B। ILB will be the force on this conductor. मगर B is not constant on the rod. What is magnetic field of this here? Something different. ये जो magnetic field है, it is not the same from here to here. So the rod is in the varying magnetic field. तो पहले हमें फोर्स निकालना पड़ेगा in the element of the rod, small element of the rod, dr element, क्योंकि इस element पर जो magnetic field है वो मुझे पता है here to here, इस कंडक्टर के से यहां तक क्या डिस्टेंस है, दैट इज r। तो इस एलिमेंट, ये जो कंडक्टिंग एलिमेंट है, इस पर फोर्स निकालना है, फिर इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सो वी हैव टू फाइंड फर्स्ट ऑफ ऑल df, व्हाट इज द लिटिल फोर्स, स्मॉल फोर्स ऑन दिस एलिमेंट ऑफ द रॉड, इस रॉड के इस एलिमेंट पर कितना, I, विच I, दिस I, नो, जो इसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो दैट इज स्मॉल I। L इस कंडक्टर का लेंथ, नो नॉट लेंथ टोटल, दैट इज दिस लेंथ, स्मॉल लेंथ, दैट इज dr, ये स्मॉल, इसका जो dr है, स्मॉल लेंथ ऑफ दिस रॉड, इस रॉड का छोटा सा लेंथ, दैट इज dr, क्योंकि वो हमने यहां से लिया है, r पोजीशन पर इसका लेंथ क्या है, dr, इनटू b मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस हियर। तो दैट इज df इज इक्वल टू I, तो व्हाट्स I, दैट इज म्यू 0, यस, I डिवाइड बाय 2 पाई r लॉन ऑफ a प्लस l बाय a इंटू v। व्हाट इज b, उसका मैग्नेटिक फील्ड इस कंडक्टर की वजह से म्यू 0 I बाय 2 पाई r। तो df इज इक्वल टू हाउ मच, म्यू 0 बाई 2 पाई, म्यू 0 I बाई 2 पाई, तो म्यू 0 I बाय 2 पाई का होल स्क्वायर, म्यू 0 I बाई 2 पाई, म्यू 0 I बाई 2 पाई। अच्छा, और ये v, और ये कैपिटल R भी लिखो ऐसे, ये v भी लिखा, ये R भी लिखा, तो बाकी क्या बचा, लॉन a प्लस l बाय a, और क्या बचा, I तो लिखा था यहां से यहां v के साथ, फिर b भी लिखा, और dr में भूल गया, dr यहां लिखो, इनटू dr बाय r, ये। बट आई हैव टू फाइंड टोटल फोर्स ऑन द होल रॉड, दिस फोर्स, but I have to find finally how much force I give forward direction, but that force is the same as this force to keep the velocity constant, because to keep the velocity constant the net force on the rod has to be 0. So that means जितना फोर्स इसको इस पर मिला मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से, उतना ही फोर्स मुझे इस ओर देना पड़ेगा। ठीक, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, अब इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करो ऐसे, तो यहां ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये वेरिएबल, तो इसको इंटीग्रेशन a टू a प्लस l,
क्योंकि इंटीग्रेशन के बाद हमें सारा कांस्टेंट बाहर निकालना है। टोटल फोर्स म्यू 0 I बाई 2 पाई होल स्क्वायर V बाय R लॉन ऑफ A प्लस L बाय A, तो ये हुआ फिर से लॉन और अंडर लिमिट्स A टू A प्लस L, राइट। तो अब क्या करना है इसका, व्हाट टू डू विद इट नाउ। तो अब ये फोर्स इज इक्वल टू म्यू 0 I बाई 2 पाई इसका स्क्वायर V बाय R ln of A plus L by A. This will also be ln of A plus L by A. It is R को जब वैल्यू देंगे A plus L minus ln A, it will be ln of A plus L by L. तो ये दो भी स्क्वायर हो जाएंगे, ये दो भी स्क्वायर हो जाएंगे, इसका भी ये होगा। सो इट विल बी F इक्वल टू म्यू 0 I by 2 pi whole square V by R ln of A plus L by A उसका स्क्वायर, क्योंकि ये दो बार आ गया। दिस इज द आंसर, म्यू 0 I by 2 pi whole square V by R ln of A plus L by A whole square. This is the answer. This is this force, backward force, magnetic force. But our answer is the same because we have to apply the same amount of force in the forward direction, velocity के direction में, ताकि इस रॉड पर नेट फोर्स 0 हो। अगर रॉड पर नेट फोर्स 0 है तभी तो रॉड will move with constant velocity. That's all. So this I call it was a good challenging problem, and this problem is for those who want to go for the advanced level IIT examination, or those who are trying to qualify Olympiad in physics. Okay, thank you. But don't forget to watch my lectures on YouTube. Also download my app, Tantra Physics Class from Google Store. Thank you.